جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ آپ سنائیے راجہ صاحب، خیریت ہے؟ مفتی صاحب کو بڑا کریں جناب۔ جی جناب حضور ٹھیک ٹھاک۔ میں نے بڑا اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی۔ کل آپ تھے ادھر مگر میں مصروف تھا، آپ سے میں جوائن نہیں کر سکا آپ کو۔ ہاں جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اپنا رائے صاحب ایک سیکنڈ، مفتی صاحب جن بندوں کے بارے میں آپ سے میں بات کر رہا تھا نا رات کو، یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عظیم بٹ صاحب، رات کو جن کے بارے میں بات ہوئی تھی نا۔ جی جی، ضرور ضرور بات کروائیے۔ جی بٹ صاحب وہ بیک گراؤنڈ میں گئے ہوئے ہیں، واپس آئے تو آپ کی یہ مفتی صاحب ان کا تھوڑا سا جب تک وہ آتے ہیں یہ کافی لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر چکے ہیں اور کرنے کی خواہش مند ہیں بڑے۔ اچھا، تو آپ چونکہ ہمارے ٹیم کے لیڈر بھی ہیں تو آپ کے ساتھ آپ ان کی بات ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ بٹ صاحب بہت لوگوں کے ساتھ نا تو ساتھ میں رائے صاحب ان کو میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے، یہ مفتی صاحب کی براڑ نہیں ہے، یہ ایک نیوٹرل براڑ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں مفتی صاحب کی براڑ پہ نہیں جاتا۔ ان کو میں نے مفتی صاحب یہ بتایا ہوا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اگر ادھر بات ہو تو؟ نہیں۔ ایک بات اس سے پہلے کہ مفتی صاحب جواب دیں، میں بٹ صاحب کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ہر طریقے سے اگر آپ مفتی صاحب کی بروڈ پر بھی جائیں تو آپ کو پورا موقع ملے گا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بندہ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بروڈ ہے یہ بھی سب کی مشترکہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہر طریقے سے بٹ صاحب کو پورا موقع دیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب میں اب بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یا کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب تشریف لے آئیں تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں بات۔ اللہ چلو خیر فرمائے جب انشاءاللہ۔ تک وہ تشریف لاتے ہیں مفتی صاحب، مجھے ایک اور بندے نے کہا کسی نے کہ ان کا کوئی بندہ ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ۔ کوئی بھی بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ راجہ جوید صاحب، مجھے ایک بات دریافت کرنی ہے، میں ان قادیانی صاحبان سے کی موجودگی کے اندر اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز زیر بحث لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مرزا غلام صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ کسی انسان کے سچا اور جھوٹا ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کی پیشگوئیوں کو دیکھ لو، اگر اس کی پیشگوئیاں سچی نکل آئیں تو وہ بندہ سچا، یعنی اپنی طرف وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر میری پیشگوئیاں جھوٹی نکل آئیں تو میں جھوٹا، اور پھر ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ اگر میری ایک پیشگوئی بھی جھوٹی ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا اور کذاب ہوں، جیسا کہ انہوں نے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 461 کے اوپر کہا کہ پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں، اگر یوں بھی خدا سے لڑنا ہے تو صبر کرو اور اپنا انجام دیکھو۔ تو بہرحال اس کے اوپر میں بڑی جو ہے نا وہ آپ کو دلائل دے سکتا ہوں کہ جو مرزا صاحب نے اپنی پیشگوئیوں کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعویٰ جات کیے، اور یہاں تک کہ اپنی پیشگوئیوں کو انہوں نے محق امتحان قرار دیا تھا کہ میری پیشگوئیاں جو ہیں وہ ایک محق امتحان ہے، یعنی ایک جس کو کسوٹی کہتے ہیں، یعنی سنار کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سونے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، یا لیبارٹری کہہ لیں کہ لیبارٹری کے اندر خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو بندے کی جو ہے نا وہ علامات پتہ چلتی ہیں، بیماریاں پتہ چلتی ہیں۔ تو
तो कहते हैं रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 288 के ऊपर कि बद ख्याल लोगों को वाज़े हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तिहान नहीं हो सकता। तो मतलब ये कि अपनी पेशगोइयों को इन्होंने बहुत ज्यादा जनाब जबरदस्ती के साथ पेश किया और बड़े उसके ऊपर दावाजात किए। जैसा कि एक और मैं आपको दावा उनका पेश कर देता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 5 के ऊपर कहती हैं, मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयाँ टल जाएं और नीज ये भी याद रहे कि हमें इस इलाही वादा के मुकाबले इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज करना लाजिम है। कहते हैं नबियों की पेशगोइयाँ टलती ही नहीं है क्योंकि वो एक इलाही वादा होता है। और यहाँ पर एक और काबिल गौर बात यह है कि वो कहते हैं कि इस इलाही वादा के मुकाबल इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज करना लाजिम है कि जो नबियों की पेशगोइयाँ होती हैं वो उसके अंदर तवील नहीं की जाएगी, वो हूबहू वैसे ही समझी जाएंगी। इंसानी तदबीरें यहाँ नहीं चलेंगी। जैसा नबी पेशगोई करते हैं हूबहू उन्हीं अल्फाज के साथ उसका पूरा होना जरूरी होता है। तो इंसानी तदबीरें यानी तवीलें कि नहीं यूं नहीं, उससे मुराद ये है, उससे मुराद ये नहीं, मुरादें नहीं, इंसानी तदबीरें नहीं चलेंगी। इंसानी तदबीरों से परहेज किया जाएगा। तो फिर जनाब पेशगोइयों के बारे में एक और आप सुन लें। तो फिर इसके बाद मैंने मिर्जा साहब की एक पेशगोई के ऊपर गुफ्तगू करनी है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 15 के ऊपर कहती हैं, अगर मैं इस पेशगोई में काज़ब निकला तो हर यक सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं और इस बात पर राजी हूं कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए। और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी जाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है। ज्यादा इससे मैं क्या लिखूं? वो कहते हैं ज्यादा इसके मैं लिखूं तो क्या लिखूं? तो एक पेशगोई भी अगर झूठी निकल है तो बंदे की रसवाई के लिए वो काफी है, काफियो वाफी है। बंदा कज़ाब साबित हो गया, झूठा साबित हो गया। तो अब मैंने बात करनी है कि पिगट के बारे में मिर्जा साहब ने पेशगोई की थी कि पिगट जो है वो मेरी जिंदगी के अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि उसने भी मसीह मऊद होने का दावा किया था। जिस तरीके से मिर्जा साहब ने मसीह मऊद होने का दावा किया वैसा ही दावा पिगट ने भी किया। तो मिर्जा साहब ने कहा कि वो बेइज्जती की मौत मरेगा मेरी जिंदगी के अंदर ही। तो मैंने ये कादियानी साहिबान से पूछना था कि आया ये पेशगोई पूरी हुई कि नहीं हुई? बस ये मेरा एक मासूमाना सवाल है जी, बात करें। बहुत खूबसूरत बात की आपने मुफ्ती साहब, और बड़ा अच्छे दलाल पेश किए आपने। तो फैजी भाई आप कुछ बात करना चाहते हैं मुफ्ती साहब से? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि अपने भट्ट साहब ने को बात करनी है तो तशरीफ लाएं, नहीं तो फिर हम मुफ्ती साहब से ही मेरे ख्याल से शायद नहीं करना चाहते इसलिए उतर गए, शायद मुझे ऐसे लगा। मुफ्ती साहब आपको ये भी खबर दे दूं कि भट्ट साहब जो है वो चले गए, शायद उनको कोई कॉल आई हुई थी काफी लंबी, तो उसके बाद वो तशरीफ ले जा चुके। चले कोई और आ जाए, कोई मसला नहीं। एक छोटा सा मासूम अन्ना मौलवी अन्ना और मुबशर अन्ना सवाल किया है, तो शाहाना भी साथ लगा ले। तो ये मुबशर शाह की तरफ से एक सवाल है भाई, तो आए कोई जवाब दे दें। और हमें तो ये जांचना है कि आया मिर्जा साहब काजिब हैं या कि वो सच्चेयार हैं, वो सादिक हैं, सच्चे हैं। क्योंकि मिर्जा साहब ने ये म्यार खुद बनाया हुआ है कि मेरी पेशगोइयों को देख लो, अगर मेरी पेशगोइयां सच्ची हैं तो मैं सच्चा, अगर मेरी पेशगोइयां झूठी हैं तो मैं झूठा। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी गुफ्तगू करने, बड़ी बड़ी बराडें करने, गाली गलोच करने से बेहतर है कि हम
मिर्जा साहब की पेशगोइयों को देख लेते हैं और इंसानी तदबीरों से परहेज करना है। ये म्यार ज़हन में रखिएगा, इंसानी तदबीर नहीं करनी, कोई तावील नहीं करनी। जैसी पेशगोई है उसी रंग के अंदर उन्हीं अल्फाज के साथ वैसा ही पूरा होना जरूरी है, क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद कहा हुआ है कि मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयां टल जाए। और नीज ये भी याद रहे, वो कहते हैं कि ये याद रहे कि हमें इस इलाही वादा के मुकाबल इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज करना लाजिम है। हाँ, ये याद रखना है कादियानियों ने, इंसानी तदबीर नहीं करनी। मिर्जा साहब की कोई एक पेशगोई, मैंने तो अभी एक पेशगोई का जिक्र किया, पिगट की पेशगोई। मैं कहता हूं मिर्जा साहब की जितनी पेशगोई आओ बात कर ले, तुम्हारी मनपसंद पेशगोई जिस पे तुम बात करना चाहते हो आ जाओ, उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। अगर तो वो सच्ची हो गई तो चलो आइंदा से हम मिर्जा साहब को कज़्ज़ाब कहना छोड़ देंगे, दज्जाल कहना छोड़ देंगे, हम कोई मसला नहीं। मुफ्ती साहब अगर एक और मुफ्ती साहब कता कलामी की माफी चाहता हूँ, वो नीचे एक दोस्त है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हवाला मांगा है, जो आपने पेशगोई दी है उसका हवाला प्लीज एक दफा रिपीट कर दें, जज़ाकल्लाह। कौन सी पेशगोई जी? वो जो इस पिगट वाली जी, पिगट वाली के एक हवाला नहीं, हम 10 हवाले देंगे। उठाइए रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 147, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 319, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 349, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 438, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 439, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 440, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 512, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 528, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 529, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 530, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 535, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 537, मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 561, मलफूजात जिल्द 3 सफ़ा 41, मलफूजात जिल्द 3 सफ़ा 278, मलफूजात जिल्द 5 सफ़ा 583, मकतूबात अहमदिया जिल्द 3 सफ़ा 119, मकतूबात जिल्द 3 सफ़ा 120, मकतूबात अहमद जिल्द 3 सफ़ा 121। जी जनाब, आराम है। ये सारे हवाले मेरे पास मौजूद है। कोई कादियानी मद्दे मुकाबल आएगा तो फिर ये हवाले देंगे ना हम। जब कोई कादियानी आके हमसे तलब करे तो पहले तो इनको तलब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इनको पता होना चाहिए कि मिर्जा साहब की पेशगोइयां हैं कौन सी। जब तुम लोगों को पता ही नहीं है, कोई कादियानी हमसे पूछेगा तो फिर तो बड़ी ताज्जुब की बात है भाई। तुम लोगों ने कादियानी कुतुब का मुताला ही नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे मिर्जा जी ने क्या क्या गुल अफशानी की हुई है। जी मुफ्ती साहब, अगर जब तक कोई कादियानी दोस्त नहीं आता, इन्ने वाले काफी ने, पूछ लो वो थले दोस्तां नु, इन्ने वाले काफी ने, आराम आया है कि होर कोई दईए। साजी भाई, मैं ये कह रहा था मुफ्ती साहब से कि जब तक कोई कादियानी दोस्त नहीं आता, मुफ्ती साहब से ये तो आप डिबेट होगी। राजा साहब, ये कोई बंदा ऊपर आए पूछे कौन है कादियानी, तो नहीं पूछा करे ना आप। मैं यार अहमद, एक ते तू लाया वे की ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਸੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲਾ ਜਿਹਾ। शाह साहब मैं काम ना लगे ठीक है। नहीं मेवान साहब वेलकम कहते हो। मुफ्ती साहब से आपको सवाल करना चाहते हैं या मुफ्ती साहब अपना खिताब शुरू करें? नहीं मेवान, और नहीं मेवान भाई तो हमारे प्यारे हैं। ठीक, इसीलिए मैंने कोई बात नहीं की थी इनसे। कौन सब भाइयों को वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा मुबारक हो, आप खैर खैरियत से वापस आ गए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह ये बड़ी कैसा रहा आपका सफर और कैसी रही ज़ियारतें? जी बहुत प्यारा सफर है जी, बहुत प्यारा सफर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, ये पेशगोइयों पर बात हो रही है। मैं ये कह रहा था जिस वक्त तक कोई अहमदी दोस्त नहीं आता, आप ये बताएं कि एक पेशनगोइयों में से एक पेशनगोई थी कि मोहम्मदी बेगम से मिर्जा साहब का निकाह होगा। कादियानियों का ये कहना है बहुत कुछ जी राजा साहब। अभी हम सिर्फ इनको एक मरकज पर रखेंगे, अभी चौमुखी हम गुफ्तगू नहीं करेंगे।
अभी सिर्फ एक पिगट के ऊपर हम बात करेंगे। पेशगोइयां तो मैंने तो ऑफर की है, पहले तो यहां से जान छुड़ाएंगे तो किसी और तरफ जाएंगे ना भाई। मिर्जा साहब की जितनी पेशगोई हैं आओ आओ बात कर लो, लेकिन पिगट की पेशगोई पर कुछ हाँ या ना तो करेगा ना कादियानी कि भाई इस पे मैं बात करना चाहता हूं या नहीं, कुछ तो करेगा ना। इस पर बात ना करोगे तो फिर भी तुम्हारी जिल्लत, करोगे तो फिर भी जिल्लत, दोनों तरफ से जिल्लत होनी है। अभी तो हम एक मरकज पर रखते हैं। अब इन्होंने किया ये कि 7 साला तारीख अहमदियत का जो ओल्ड एडिशन था उसके अंदर यही पिगट के मुतल्लक ये सवाल आप उठा के देखें। सवाल नंबर 409 है, 410, 411, 412, ये पिगट के मुतल्लक सवाल थे। अब उसकी इबारत कुछ और थी, अब नए एडिशन के अंदर इबारत ही तब्दील कर दी है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये तो कोई कादियानी अब सामने आएंगे तो फिर है ना, ये तो मेरे हथियार हैं, ये चीजें तो मैंने संभाल के रखी हैं कादियानियों को जलील और ख्वार करने के लिए। अब सामने आएंगे ही नहीं तो अब चलो वैसे ही हम काम कर लेते हैं। अब ये देखें, ये ओल्ड एडिशन है, ओल्ड एडिशन के अंदर ये वाली लाइन थी, और हजरत अकदस की जिंदगी में ही बेइज्जती की मौत मरा। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पिगट जो है वो मिर्जे कादियानी की जिंदगी के अंदर ही बेइज्जती की मौत मरा। ये पुराने एडिशन में था, नए एडिशन में जरा देख लीजिएगा, यही लाइन को यहां से गायब कर दिया गया और उनकी चोरी की अलामत यहां पर मौजूद रही कि जो इन्होंने वो रिमूव किया ना, अरेज किया, तो ये हजरत की रे का कुछ हिस्सा यहां पे बाकी है। ये जो हजरत, ये वाली हजरत, ये वाली, ये रे, ये थोड़ा सा हिस्सा यहां पर बाकी रह गया। ये देख, ये देख, इनकी चोरी देखें, इन चोरों की चोरी देखें, देख रहे हैं आप। आए ना बात करेंगे तो फिर ही मैं हवाले दूंगा ना, ऐसे तो नहीं, दलाइल तो बड़े हैं फिर मेरे पास। मिर्जा कादियानी ये अस्सलाम वालेकुम शाह साहब जो थी, ये एक अखबार था इंग्लिश के अंदर। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये जो भारत अभी दोहराई है, इसका हवाला बता देंगे किस किताब का है? 7 साला तारीख अहमदियत। 7 साला तारीख अहमदियत, हाँ जी, ठीक है। इसका ओल्ड एडिशन भी आपके पास भी शायद होना चाहिए, मैं चेक कर लूंगा फिर भी। हाँ बिल्कुल, नया एडिशन भी देख लीजिएगा तो दोनों के अंदर आपको फर्क खुद पता चल जाएगा। बस ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने क्या देखा कि ये किताब कोई अनजान सी लगी है मुझे। नहीं नहीं नहीं, सफा नंबर 129 के ऊपर, सफा 129। ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो इंग्लिश अखबार के अंदर उसने पूरा मजमून लगवाया, बड़ी डींगे मारी, बड़ी डींगे मारी, मर जाएगा, खप जाएगा, मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी में ये, मेरी जिंदगी में ये, मेरी जिंदगी में ये। हुआ ये कि पिगट जिंदा रहा, मिर्जा कादियानी गया मर। लो खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा, वो भी मोया आया है। आओ ना करो गल, सामने आओ, दौड़ क्यों गए हो, निकल क्यों गए हो? वैसे काफी अरसा हुआ है ये पिगट वाली जो पेशन गोई थी, इस पर बात की है या बात सुनी? करेंगे हम जी, करेंगे, उजागर करेंगे वो जो चीजें गुफ्तगू की हो वे करसा में हो गया है, तो हम दोबारा वो अब रीन्यू करेंगे सारी चीजें। पिगट ने कोई इनके हक में कोई बयान शान तो नहीं दे दिया था? वो कुछ भी नहीं, पैगाम रोला असल में ये था कि मसीह मऊद जो था वो उसके जिंदगी के अंदर ही कोई 1000 किस्म के मसीह मऊद पैदा हो चुके थे। अब मतलब ये कि जो तुम कह रहे हो कि भाई मेरी अलामत है ये, तो वो सारी अलामतें तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे हक में पूरी हुई है। ड्रामेबाजी है ना असल में। अब दूसरों को रुसवा करना या दूसरों को जलील करना इसकी मजबूरी बन गई थी। मिर्जे के दौर के अंदर ही कई किस्म के मसीह मऊद पैदा हो गए थे। लेकिन शाह साहब पिगट की पेशगोई इनके गले पड़ी हुई है, हम बोलते नहीं, अलग बात है, जिक्र में नहीं आती।
हाँ नहीं गले में डाल के रखना है, इन्होंने धरूना है। हाँ ये गले में डाल के रखनी है। ये रिव्यू ऑफ रिलीजन को उर्दू का शुमारा है ना, उसमें भी मौजूद है। हाँ जी उसमें भी मौजूद है, तज़किरा के और तारीख अहमदियत में भी मौजूद है। बिल्कुल जी, तज़किरा के अंदर ये बातें मौजूद है। हाँ जी तारीख अहमदियत में भी मौजूद है, खुद मिर्जा कादियानी का हवाला मौजूद है इस पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने अभी ना आपके आने से है कि ये बच्चे का नहीं, ये मरेगा। आपके आने से थोड़ी देर पहले मैंने हवाला जात दिए हैं जी। फिर इसके बाद डॉक्टर सलाम ने इस पर एक किताब लिखी है, उसने एक दजल किया है पेशगोई पर, उसका हवाला अंग्रेजी में किताब है। उसने कहा कि हो सकता है मेरी जिंदगी में मार जाए, ये अल्फाज उसने अपनी तरफ से दाखिल किए हैं। नहीं हो सकता नहीं, उसने कन्फर्म किया था मरेगा। कन्फर्म लिखा है ना, उसने खुदा से फैसला चाहा था। ये खुदा का फैसला आना था कि खुदा ने फैसला करना था, झूठा सच्चे की जिंदगी में मरना था, झूठे ने पहले मरना था। ये तो फैसला उसने खुदा से चाहा। ये वजह तहरीर इसकी रिव्यू ऑफ रिलीजन में मौजूद है, कार्बन 1903 का शुमारा है उसमें मौजूद है। हाँ जी रिव्यू ऑफ रिलीजन, हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। अंग्रेजी का भी है, उर्दू का भी है जी, अंग्रेजी का भी है, उर्दू का भी है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो इस पर इन्होंने बड़े पंचर लगाने की कोशिश की है, लेकिन लगा कोई भी नहीं है इस पर। ऐसे ही। और मजे की बात है इस पर पॉकेट बुक भी खामोश है, उसने भी कुछ नहीं लिखा इस पर, जिक्र ही नहीं किया इस पेशगोई का। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो बड़ी बड़ी गुफ्तगू होनी बाकी है कादियानियों, निकल दी है, बस थले बह के सुनो ध्यान नाल। ते पुत्र हुण ना जवाब दिता ते साडे आ मुंडे जेडे सुनते ने ना पे इन्हां ने तुहाडीआं बराडां ते जाके सवाल करने ने। दबो ये जवाब कादियानियों, सारे मुंडे सुन लो। ए पिगड़ दे बारे है कोई 2 दिन ना हुण इन्हां दीआं बराडां दे उत्ते जाके ते तुसां इस मसले नूं उजागर करना, पिगड़ दी पेशगोई दे उत्ते। ते चलो नईम अवान भाई भी आ गए ने माशाल्लाह। अच्छा ये 2 नईम अवान एक ही चक्कर है? ये अवान बरादरी बहुत बढ़िया जी हमारी। नहीं नईम मैं ते जेडे उत्ते बैठे ने ना इन्हां नूं पुछ रहा, समझ रहा सा शायद ए ने ओही नईम अवान अपने है। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। चलो मुफ्ती साहब मैं बड़ा पुराना फॉलो करने वाला हैगा वा तुहाडा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। मैं वैसे पूछ रहा सी कि हम नाम 2 बंदे हो गए ने ना ते जी वो ज़ात बरादरी फिर तुहानू पता है। अच्छा जी ठीक हो गया। नहीं ये अपने जेडे नईम इमाम थल्ले ने ना जेडे बोल रहे सी ते बड़े पुराने साडे साथी ने ते बड़े प्यारे दिन ने। हाँ जी अच्छा ठीक हो गया यार साहिबान, तुसी तशरीफ रखो, मेरे मेहमान को जागे ने यार। फिर कोई आया ते डिबेट फिक्स कर लिया जे राजा साहब ते कर लांगे डिबेट है जी। नहीं वो कोई करना तो सारी आखिरी सवाल है मुफ्ती साहब आपके जाने से पहले। जी 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 वो कह रहे हैं कि पता नहीं कोई इजरा नबूवत पर डिबेट करनी है। अगर वो जिदे ते मर्जी करन जी, मौजू इन्हां दा कोई गल नहीं, प्लेटफार्म भी इन्हां दा, टाइम भी इन्हां दा, शरायत भी इन्हां दियां, ज़ाबते भी इन्हां दे, जेड़े कीमत दे उत्ते राजी हुंदे ने इन्हां नूं कर लो, चलो कोई मसला नहीं, कर लेना जी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया हजूर, अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे। आमीन जी, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिएगा जाते जी जी। कैसे मिजाज है मुफ्ती साहब? जी शुक्र अल्लाह पाक करते हैं जी आपकी खिदमत में। जी जाजी भाई वो बात एक बता दीजिएगा कि वो जो फतवा आपने वो मतलब कैसर पे दिया था उसका स्टेटस क्या है अभी? कौन सा जी? मतलब कैसर साहब पे जो, और उनके वो जब अलीम साहब जब आप ये पिगट की पेशगोई के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ना उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। हल्का सा बता दें फिर उस पे। नहीं हल्का सा नहीं, जब हल्का सा आप पिगट की पेशगोई पर बात करेंगे ना हल्की सी, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। अलीम साहब वो बात खत्म हो गई है, आप पिगट पर बात करें। जी अलीम साहब मंजूर है आपको पिगट की पेशगोई मिर्जा साहब ने की है? हेलो मिर्जा साहब ने कहा है मेरी पेशगोइयां मेरा मुहिक्किम। चलो दौड़ गए जी। चल मुफ्ती साहब ये मुश्किल बात कर दी, हवा टैट हो गई है, हवा आता है वो नस जाता है, हवा टैट हो गई, बस इतनी सी गल। चलो लगता दे भार ते पाओ मर जाओ, तुसी अपने आप नूं अहमदीयत कहंदे हो, अहमदी कहंदे हो पे, और सच्चा मजहब अपने आप नूं कहंदे हो, सच्चा
सही इस्लाम अहमदीयत पता नहीं की नारे ते तुहाडे है ने ते ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪਏ? ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਪਾਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। मुफ्ती साहब ये बात सारी ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡਾ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਦੀਸ ਸਾਡੀ, ਆਓ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਚਲੋ जी यार, राजा साहब माजरत, मेरे मेहमान आए ने यार। ठीक है, सॉरी मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हाजिर होते रहा करें।